Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. And for the last 30 years, I have been into this profession of coaching, and I am really very proud to say that students of our academy have come out in flying colors. They are working in big hospitals, big industries, and they are very, very successful in their lives. So this was because under our mentorship, they really had been very obedient and very disciplined. And believe me, children, getting through in all the exams is not a hard nut to crack. It's very easy, provided you are following a definite course of action. Daily you need to climb the ladder, every step daily, and then nobody can stop you from acquiring your destiny. It's all so simple. Science as such is a very, very interesting phenomena. Why? Because whenever you write any sentence in science, be it physics, be it chemistry, be it biology, everything has got a reason. Why? Means whenever you read a particular line, you can ask yourself that question, ki why this line is written, why this happens. You will get the answer to that. So there is nothing like you have to believe it with closed eyes. You can imagine every single statement, every single word given in these subjects. That makes science so interesting. So till now we were doing about a very good topic, that is atomic structure, and it's really very, very interesting. Why I say interesting? Because I am myself very passionate about this. The more I know about this, I feel that it is such a wonderful thing. The same thing will happen with you provided you study in the way as it is required and as it is guided. The day when you are passionate to solve number of questions and you don't sleep without solving those questions, we will really be very happy, very pleased to see that the change which we wanted to bring, that change has come. Means that reformation is there. So in the last lecture, we were discussing about the photoelectric effect. You could see that how nicely the electrons are ejected, and that was a beautiful phenomena. Then we discussed about hydrogen spectrum. It's another very amazing fact that a single electron and so many spectral lines we are able to get, again for a reason. In the same way, next important thing that we are going to do is about quantum numbers. Now quantum numbers, what does it mean? This basically gives the address of the electron. You have studied till now K electrons are there in K shell, L shell. Electrons K में हैं, L में हैं, then it is there in M shell, then it is there in N shell. उनसे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में है. अब उसके सारे वेयर अबाउट्स हमको पता करने हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन विच सब शेल, इट इज़ प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, एंड व्हाट इज़ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए वी नीड टू स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर्स. So simply in one word you can say that it gives all the address, complete address of electron, and there are mainly 4 categories of the quantum numbers. One is principal quantum number. The second one is azimuthal quantum number. When you will read it twice or thrice, you will get used to these terms. उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर. अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय n. यहाँ पे आई एम राइटिंग इट इज़ डिनोटेड बाय n, और इसके पूरे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसकी वैल्यूज़, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि ये इंडिकेट करता है शेल। अगर इसकी वैल्यू 1 है इट मीन्स के शेल, अगर वो 2 है तो इट इज़ एल शेल, अगर 3 है तो इट इज़ एम शेल एंड सो ऑन। 4 है तो एन, अगर उसके बियॉन्ड भी है तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है। मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किस बारे में बता रहा है? इट इज़ इंडिकेटिंग द शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद सेकेंड केस है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से, और इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 to n-1। अब 0 to n-1 का मतलब क्या है? n अगर 4 है तो l हो जाएगा 0 से लेके 4-1 तक। मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, ये हो गई टोटल वैल्यूज़ l की। अगर l की वैल्यू 0 है तो वो बिलोंग करता है सब शेल, दैट इज़ s। अब शेल के बारे में हमने देखा, शेल के अंदर क्या है? सब शेल्स हैं। तो सब शेल्स के बारे में भी कौन बता रहा है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये s हो गया, 1 है तो ये p हो गया, 2 है तो ये d हो गया, 3 है तो ये f हो गया। s, p, d, f ये सब क्या हैं? ये सब शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। s मतलब शार्प, p कहाँ से आया? प्रिंसिपल, d कहाँ से आया? डिफ्यूज़, f फंडामेंटल। तो ये जो 4 नंबर्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 0, 1, 2, 3, s, p, d, f। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं m से, और इसकी वैल्यूज़ होती हैं -l to +l थ्रू 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मीन्स एटम के अंदर जो स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। मीन्स ऑर्बिटल्स इज द स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दैट इज़ इंडिकेटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं? l की वैल्यू से रिलेट करता है, मतलब -l to +l थ्रू 0। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हर वैल्यू जो l की है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी m की। मीन्स अगर l की वैल्यू 0 है तो m भी क्या हो जाएगा? 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से +1 थ्रू 0। ऐसी अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1, +2। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कितनी हो गई? 5 वैल्यूज़ हो गई। तो जो भी वैल्यू है ये वाली वैल्यू इंडिकेट कर रही है एक ऑर्बिटल, ऐसी ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है एक ऑर्बिटल। मीन्स अगर l की वैल्यू 1 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 हो गए, अगर l की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 हो गए। ऐसे ही अगर l की वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 7। -3 to +3 थ्रू 0। तो ये l, m इनकी वैल्यूज़ में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, it is denoted by m, its values are -l to +l through 0, और every single number indicates orbital, हर नंबर एक ऑर्बिटल डिनोट करता है। This is what you need to remember about magnetic quantum number। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो वो स्पिन करता है, मीन्स रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसकी ओरिएंटेशन इंडिकेट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं s से, और इसकी वैल्यूज़ होती हैं +12 एंड -12। +12 की वैल्यू तब दी जाती है जब वो क्लॉकवाइज स्पिन है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा तो वो -12। तो पहली वैल्यू हमेशा +12 की होती है। जैसे ये ऑर्बिटल है और इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिनोट करेगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिनोट करेगा। जो प्लस ये क्लॉकवाइज है इसको डिनोट करेंगे +12 से, एंटी क्लॉकवाइज है इसको डिनोट करेंगे -12 से। तो हर ऑर्बिटल में
दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन हमेशा फर्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हमेशा सेकेंड। तो जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे इंटू 2 कर दोगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मीन्स यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसी ये जब इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14। ये सिंपल से 4 क्वांटम नंबर्स जब याद रहेंगे तो इनका रिलेशन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्रिमेंडस क्वेश्चंस विग्रसली। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड बहुत सारे टफ क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में भी करेंगे। मीन्स इतने सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल ऑल मेक द टॉपिक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। यू विल रियली एंजॉय इट। सो चिल्ड्रन, completely do this, revise the topics, read again and again and follow the course of implementation, and I'm sure you are going to like each and every topic of this 11th chemistry. So keep watching the video, like the video, subscribe the channel, press the bell icon so that we are always there with you to solve your doubts, to solve your problems. Till then, thank you so much.